Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So CLAT and A-Late 2026 dates are finally out and the exam now really feels कि ये होने वाला है. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होने वाला है और जो हमने एक्सपेक्ट किया था उन्हीं के आसपास डेट्स आई हैं. So we have CLAT on 7th of December and A-Late on 14th of December. Now a lot of you would be appearing for both these exams and it makes sense. If you're preparing for only CLAT also, I would strongly suggest everybody to appear for A-Late also because कोर्स या सिलेबस की अगर बात करें तो दैट इज मोर और लेस सेम. तो इसीलिए कोशिश करो, है ना, अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या नॉट एबल टू कन्विंस योरसेल्फ, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि एक ही कॉलेज है ना, तो जो पासिंग का रेट है या फिर जो सिलेक्शन का रेट है दैट इज वेरी लेस, बहुत कम चांसेस है. बट कम चांस भी इज अ चांस, राइट? मतलब क्लैट में भी अगर आप देखोगे तो चांस तो कम ही होता है, बट अगर हम एफर्ट डाल रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाई नॉट गिव आवरसेल्व्स दैट सेकंड चांस आल्सो, और वो एक एफर्ट वहां भी हम लगा सकते हैं. क्योंकि बहुत बार व्हाट आई हैव सीन इन दीज एग्जाम्स इज देयर आर फ्यू पीपल जो क्लैट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए हैं, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीजन, पहला एग्जाम है, जो भी रीजन है, आप क्लैट नहीं अच्छा कर पाते हो, वो बच्चे A-Late में बहुत अच्छा कर लेते हैं कई बार, है ना, एंड वाइस वर्सा, है ना, दोनों तरफ इस तरह की चीजें हो जाती है. तो जरूर दोनों एग्जाम्स आप लिख सकते हो. नाउ हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर बोथ दीज एग्जाम्स टुगेदर? तो जैसे हम लोग सब समझते हैं दैट क्लैट हैज ऑब्वियसली मोर कॉलेजेस. आप लेट्स से इफ यू गेट अ 400 rank also you can go to a really good law school. So CLAT is obviously going to be my primary focus while preparing, right? तो मैं CLAT की जो preparation है उनको I will, you could say, do as I was doing or as I will start to do, right? A-Late को साथ साथ में मैं क्या करूंगा, A-Late में पहले दो अलग चीजें आया करती थी जो CLAT में नहीं आती है, which is analytical reasoning and static GK. But what happened in CLAT 2025 was they gave you a 6 mark का analytical reasoning का question also. Also that question was wrong, they took it back, but इससे ये पता चलता है कि CLAT maybe they can give you analytical reasoning, they can surprise you with this. They can give you static GK because for the last 2 years they have been giving questions on non-cooperation movement, the civil disobedience movement. So we can again expect those sort of questions. So we need to study the basics of history and other parts of static GK also. तो पहले ये चीजें सिर्फ A-Late के लिए पढ़ी जाती थी, अभी we are anyway going to do it for CLAT. तो यहाँ पर preparation wise speaking, not a lot would change. But a major difference between a CLAT paper and the A-Late paper is the length of questions. Because 120 minutes and 120 questions is what we see in CLAT. Lengthier questions, big passages, you could say passage के basis पे you have to solve a lot of questions and every question comes from a passage only. But for A-Late you will find, yes, there are questions on English comprehension, some questions on critical reasoning also, but most of the questions are single questions. And they also ask you more questions as well, है ना? तो आपको वहां पर भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि यार lesser time, I have more questions, but the questions are smaller, so you need to adjust that time और उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है. तो if you are doing let's say 2 CLAT mocks in a week, तो 7 to 10 days में ideally do 1 A-Late mock test also in the last 3 to 4 months. ठीक है, उसको लास्ट के 2 महीने में ले जाके पर वीक एक A-Late mock कर देंगे, तो इतना आपको टाइम निकालना पड़ेगा. बिकॉज A-Late अगेन एज आई एम सेइंग, प्रिपरेशन वाइज नॉट अ लॉट वुड चेंज, बट अगर आप मॉक नहीं करोगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उस पर्टिकुलर रिदम में नहीं आओगे और एग्जाम में आपको जाके अटपटा लगेगा, बिकॉज आपको ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि विच सेक्शन टू सॉल्व एट व्हाट पॉइंट. अब जैसे A-Late है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत बड़ा सेक्शन है, इट्स अ 70 मार्क का सेक्शन, तो हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के एग्जैक्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड आ जाएंगे. तो हाउ डू वी सॉल्व देम, हाउ डू वी रीच आउट टू दोस क्वेश्चंस, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो वो आपको करके पता चलेगा कि आपको एनालिटिकल रीजनिंग कितना इंप्रूव करना है, आप जीके टुडे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ स्टैटिक जीके क्वेश्चंस कैन कम, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन इंग्लिश आल्सो, क्योंकि वो भी एक हेवी 50 नंबर का सेक्शन है. तो क्या क्या चीजें उसमें आ सकती है, ग्रामर पूछी जा सकती है, वोकैबुलरी पूछी जा सकती है, दे कैन आस्क यू सिंपलर क्वेश्चंस लाइक पैराजिम्बल्स आल्सो, दे कैन आस्क यू डिफिकल्ट पैसेजेस कि उसमें से आंसर करो, तो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स कुड टेस्ट यू इन डिफरेंट वेज. सो यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट. तो आप लोग मॉक्स जरूर दोनों के करना फ्रॉम दी स्टार्ट. अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्रेपरेशन वाइज देयर इज नथिंग टू चेंज, बट A-Late की प्रेपरेशन आपको अगर साथ साथ करनी है तो मॉक टेस्ट जरूर करना. ठीक है, कीप इट वेरी सिंपल, डोंट अननेसेसरली ओवर कॉम्प्लिकेट इट कि हम ये भी करेंगे फिर एक दिन A-Late को देंगे, वो करेंगे. CLAT की प्रेपरेशन में आजकल पूरा A-Late कवर होता है. ठीक है, इनफैक्ट CLAT इज मोर देन A-Late ना, बिकॉज उसमें लीगल भी है, उसमें मैथ्स भी है, विच इज नॉट देयर इन A-Late एग्जाम दीज डेज. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप एक एग्जाम CLAT की प्रिपरेशन कर रहे हो, A-Late बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर्ड है, बस मॉक टेस्ट अलग से करने. इट्स एज सिंपल एज दैट.
क्लैट के लिए कैसे प्रिपेयर करें ये मैं आपको कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, है ना। मैंने आपको रिसेंटली एक आई डिस्कस जो 5 मंथ स्ट्रैटेजी सेशन, आई डिस्कस मल्टीपल अदर वेज कि आप क्या 5 चीजें कर सकते हो लास्ट के कुछ टाइम में। तो जस्ट फॉलो दैट। आई विल ऑब्वियसली कीप कमिंग अप विद सर्टेन स्ट्रैटेजीज दैट यू गाइस वुड लाइक टू फॉलो, वुड वांट टू फॉलो टू डू वेल इन बोथ दीज एग्जाम्स। बट हाँ, टारगेट फर्स्ट क्लैट को लेके चलेंगे, एलेट एज अ बैकअप लेके चलेंगे, बट फॉर्म जरूर भर देना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि फॉर्म भर दोगे तो आप एटलीस्ट एक यू विल हैव अ फॉल बैक ऑप्शन इन केस। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लैट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, बट वी गो टू द एग्जाम एंड वी कम बैक, वी फील कि उतना अच्छा नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसी लिए हमारे पास एक फॉल बैक ऑप्शन हो जाता है, लेट्स ट्राई एलेट, लेट्स डू वेल इन दिस। बहुत सारे बच्चों का हर साल क्लैट में सिलेक्शन नहीं होता और एलेट में हो जाता है, बिलीव मी, दिस हैपेंस एवरी सिंगल ईयर, राइट। यू कैन ऑल्सो बी दैट नेक्स्ट पर्सन, राइट, इट इज वेरी मच पॉसिबल। And if you want to prepare with us, with India's top educators, you can join our latest batch, Utkarsh and Utkarsh Plus. It is both for CLAT as well as ALET 2026. इसमें आपको CLAT के मॉक्स भी मिलेंगे, ALET के मॉक्स भी मिलेंगे, CLAT बेस्ड डिस्कशन भी होगा, ALET बेस्ड डिस्कशन भी होगा। तो कोर्स तो अगेन मैंने जैसे बताया कि मोर और लेस सेम ही है, तो वो सब कुछ एनालिटिकल रीजनिंग, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस बैच। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप साथ साथ में अच्छे से कर पाओगे और आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो अपने खुद की कन्वीनियंस पर। बट हम लोग जनरली सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 2 क्लैट के मॉक टेस्ट और 1 एलेट का मॉक टेस्ट अगर आप पर वीक सॉल्व करोगे तो यू विल बी इन लाइन टू क्लियर बोथ दीज एग्जाम्स, है ना। वी वांट टू गिव आवरसेल्व्स अ चांस टू क्लियर क्लैट, बट वी वांट टू स्टे इन कंटेंशन फॉर एलेट आल्सो, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली जॉइन इट, इन नंबर पर कॉल कर सकते हो, वी विल गाइड यू विद एवरीथिंग दैट यू want to understand about this exam. Visit 12minutes2clat.com or you can download our app from Google Play Store or App Store. You can use my code MALPANI which will give you maximum discount. इन दोनों बैचेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप जब लिंक्स पर क्लिक करोगे तो आपको उसके सारे फीचर्स भी दिख जाएगा कि इन बैचेस में क्या क्या है, कितनी क्लासेस हैं, कितने टेस्ट्स हैं और क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम करते हैं। तो वी डू अ लॉट ऑफ यूनिक थिंग्स दैट नोबडी विल डू इट फॉर यू। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि हम बहुत महान लोग हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, थोड़ा सा दिमाग चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दिस एग्जाम इज लॉट अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, चाहे वो क्लैट हो चाहे वो एलेट हो, तो वो डेवलप करनी पड़ती है। उससे स्पून फीडिंग से कई बार काम नहीं चलता है, तो वो कुछ चीजें डेवलपमेंट के लिए भी डू अ लॉट ऑफ क्लासेस एज वेल। Other than the strategy session, we have something called brainstorming with editorials, and you could say a lot of different things. तो आपको वो डेफिनेटली जो मैंने आपको नंबर्स दिए, they will be able to guide you. उसके अलावा you can also read very well about the features that we have in these batches. तो आप बहुत इजीली, काफी अफोर्डेबल तरह से अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपकी प्रेपरेशन एक पॉइंट पर कहीं पर अटकी हुई है, तो दिस इज द टाइम वेयर यू एक्चुअली पुट दैट गियर एंड स्टार्ट टू एक्सेलरेट इट रियली फास्ट, राइट। That's it about this session. अगर आपको कोई भी डाउट होता है, mention that in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it. All the best, guys. I'll see you back.